Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and studying well. Now let's continue our part 2 video, chapter number 17, Social Science, Livelihood. So in previous video, you learnt about rural life. In rural village area, what kind of occupations in village area, what kind of activity people have in rural area. You have seen that, you have learned that. So now let's continue our part 2, connection of the village with the city. Now in this chapter you are going to learn about the urban area. Urban means city area. What kind of occupations in city area, and in the city, especially in the city area, what people have to do to earn income. So Ramnagar is a small village. There is a merchant named Jagabai. रामनगर नाम एक विलेज है, गांव है, उसमें एक व्यापारी रहता है जगाबाई करके. He has a small shop. He has a small shop. Vegetables are available in his shop. Along with grocery, many necessary things of life are so available here. Shop, salt, medicines of all type are available in this shop. Most of the people grow rice in Ramnagar. रामनगर के ज़्यादातर लोग राइस उगाते थे. If village people need anything from Jagabai shop, then they take rice to the shop. If village people need anything from Jagabai shop, then they take rice to the shop. In lieu of rice, Jagabai give them their demand things. That is the barter system. Understood? राइस देके जगाबाई क्या करते थे, लोग जो थे राइस देते थे और उनके बदले में जगाबाई उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें होती है वो देते थे. ये सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, पहले थी. दैट इज़ द बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ों के बदले में चीज़ देना, वस्तु के बदले में वस्तु देना. दैट सिस्टम. He sells rice to the big shop of the city. और उसके बाद जगह पे क्या करते थे, वो जो राइस जो आते थे वो राइस शहर में बेचते थे. Which he has purchased and collected from the village people at a lower rate and sells at little higher rate and earn money. इन जगह पे कैसे वो ज़्यादा अपनी इनकम करते थे, लोगों से राइस लेते थे कम दाम में, उसके बदले वस्तु देते थे, वो भी उसको फ़ायदा. और वही जो राइस होते थे वही राइस वो सिटी एरिया में थोड़े हायर रेट पे वो बेचते थे और वो पैसे कमाते थे. तो ये कनेक्शन हुआ सिटी और विलेज का, कि विलेज से ली जो सामान है वो शहर में जाके बेचते हैं, शहर में उसके अच्छे दाम में उसको मिलते हैं. We have read about the case of farm labor like Madhuba. In addition to big farmer like landlord, we show details of small farmer like Salman, as well as small dealer like Jagabai. They also have source of income along with small shop. Beside cattle rearing and retail labor, we also have noticed detail about the people who live life by earning enough retail work in industrial estate. इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना रिटेल का काम करने के लिए शहर में भी जाते हैं और कुछ लोग उद्योग में भी काम करते हैं. जगह पर जैसे व्यापारी शहर में जाकर भी व्यापार करते हैं, जिससे उससे उनको क्या होता है कि अच्छी इनकम होती है.
और उनका जीवन यापन भी अच्छी तरह से चलता है। नाउ अदर वेज ऑफ अर्निंग, कमाने के दूसरे सोर्स। सांचरडा is a small village. It is situated on the seashore. So have you ever think about the land mostly people living in surrounding the land area, there are easily to income earn money. But people who are living in the seashore area, what they do, how they earn, have you ever think about that? So now let's see. Rudy Behan and Lakhi Ma live here. They do not have their land for farming. ये दोनों है, उनके पास ज़मीन खेती करने के लिए नहीं है। They neither do retail work nor earn money with any permanent work at any place. ना ही वो कोई रिटेल वर्क करती है और ना ही उनके पास कोई दूसरा पैसे कमाने का कोई उनके पास परमानेंट काम है, ना ही ऐसी कोई जगह है। रूडी बहन एंड लकी माँ आर एंगेज्ड इन फिशिंग। सिंपल सी बात है कि वो कहाँ पर रहती है, समंदर के किनारे रहती है, तो वो काम क्या करेगी, वो फिशिंग का काम करेंगी, यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ के मछली का बिजनेस करना। और मछली पकड़ने के लिए उनको जाना पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मछली सीधे सीधे समंदर के किनारे आ जाएगी और उनके पास आएगी, आओ भाई मुझे बेच दो। तो वो मछली पकड़ने जाएंगे और मछली पकड़ेंगे, फिर वो बेचेंगे। और इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी है मछली पकड़ने में। समंदर में जाता है तो जीव जान का जोखिम रहता है, कई बार तूफान होता है, तो तूफान में भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकते। फिशरमैन इज कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। फिश इज अ मरीन लाइफ। फिश इज अ मरीन लाइफ। रूडी बहन's husband helps her in household chores. Lucky Ma is an old woman. Her husband has died. There is a small boat with Rudy Behan and Lucky Ma. They keep it at the seashore. उनके पास एक बोट है, उसने कहाँ पे रखी हुई है, समुंदर के किनारे रखी हुई है। They have a small net and other device to catch the fish. उनके पास नेट का मतलब यहाँ पे होता है जाली, उनके पास जाली है और कई ऐसे साधन है मछली को पकड़ने के लिए। They go into the sea to catch fish. वो समुंदर में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। They have to go far away from seashore into sea to catch fish. उनको सब मछली पकड़ने के लिए समंदर में काफ़ी दूर तक उनको जाना पड़ता है, तभी मछली पकड़ पाते हैं वो लोग। मैंने जैसे बोला कि मछली सामने से तो आएगी नहीं, क्या हो गए मुझे पकड़ो। They do fishing for 8 months for getting livelihood. साल के 8 मंथ वो अपना जीवन यापन यानी कि अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए 8 मंथ वो फिशिंग करते हैं। कितने मंथ? 8 मंथ्स। सो कैचिंग अ फिश इज़ वेरी रिस्की बिकॉज दे हैव टू गो far away from to seashore, sea area. It is risky to explore sea during the monsoon season. जब बरसात की मौसम होती है तो सी को एक्सप्लोर करना बहुत ही रिस्की होता है, मछली पकड़ना। Hence, Rudy Behan and Lucky Ma do not go for fishing during monsoon. और मानसून के दौरान वो दोनों फिशिंग के लिए नहीं जाते। Person like Rudy Behan and Lucky Ma are helpless in front of natural calamities like rain, साइक्लोन एक्सेट्रा। रूडी बहन लकी माँ जो है वो कुदरती यानी नेचुरल क्लाइमेटीज जो आती है
उसके दरमियान वो हेल्पलेस हो जाती है। जैसे कि रेन और साइक्लोन आता है तो वो कुछ नहीं कर पाते। दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ क्लाइमेटिक्स, और इन आफत के दौरान उनको अपना जीवन यापन दोहराना बहुत ही मुश्किल होता है, जीवन यापन करना। सिंस दे डो नॉट हैव एनी अदर वे टू जनरेट इनकम, और उस टाइम पे उनके पास कोई इनकम जनरेट करने का कोई वे होता नहीं है। When they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in this time. जब वो फिशिंग नहीं कर पाते हैं तब उनके पास काम मिलना उस समय पे बहुत कठिन होता है। That is why they have to borrow money to make living, और इसके लिए उनको जीने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। This is the reality. This is the reality. आज भी ऐसा है, जिसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं होता वो पैसे उधार लेते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। They face difficulty to fishing too. These days pollution is increasing very everywhere. ये भी एक प्रॉब्लम है कि अभी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मछलियाँ ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती और उसमें पॉल्यूशन होता है। दे हैव टू गो फॉर अवे इनटू द सी फॉर फिशिंग, तो उसके लिए पॉल्यूशन होने के कारण उनको समुद्र में काफ़ी गहराई तक उनको फिशिंग करने के लिए जाना पड़ता है। प्लास्टिक एंड पॉल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गो टू द सी थ्रू रिवर्स और ड्रेनेज, एंड ड्यू टू दिस सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। प्लास्टिक, प्रदूषित पानी, उद्योग के थ्रू जो रिवर के थ्रू पानी आता है वो गंदा होता है। गटर का पानी वो भी समंदर में बहता है, और इससे क्या होता है कि समंदर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। नंबर ऑफ फिशेस आर ऑल्सो डिक्रीजिंग ड्यू टू द पॉल्यूशंस, और उसके पॉल्यूशन के कारण फिश की जो क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है वो काफ़ी घटती जा रही है। This situation creates tension for Lakhima and Rudi Bahan. Fishing is not possible during the cyclone. Economically, they were severely affected during tsunami. सुनामी आती है तब उनको इकोनॉमी बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। Their boat was also damaged during this time. उनके जब साइक्लोन आता है तो उनकी बोट वो वहाँ पे रखते हैं, तो साइक्लोन के दौरान उनकी बोट भी डैमेज होती है। शी कुड नॉट गो फॉर फिशिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक वो फिशिंग के लिए नहीं जा पाते। हैंस गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प देम टू परचेज अ न्यू बोट, और इस दौरान गवर्नमेंट जो होती है उनको नई बोट लाने में उनकी सहायता करती है। इन दिस वे many people go to the cities from village and they sell their items like milk, vegetables or other things to earn their living. और इन परिस्थितियों के कारण कई लोग शहर से गांव की तरफ जाते हैं और दूध, वेजिटेबल्स, सब्जियां बहुत सारी वहाँ पे वो बेच के अपना अर्निंग करते हैं। Now things to know. This question is for you. How do people earn around us? अपने आसपास लोग हैं वो कैसे अपना इनकम जनरेट करते हैं? How many hours would a fisherman work daily? What can you do to keep sea clean? Other than fishing, what else could be sold to earn money? During which type nature climate do people get not for fishing and why? All this question in this paragraph, so you have to find out yourself. Now let's see life in the city. All you are living in the city area, so all you are aware about the city life, very fast life. We have discussed about the life and livelihood of village. In the same manner, it is also necessary to obtain information about business and employment in the city. It is very difficult to get employment in the city.
let us see about the details of employment of the people living in the city. So what do people in the city area for their livelihood? So there are many people around us. Each one is connected with some work. हम में से कोई एक जो होता है वो हर कोई अब कोई ना कोई काम से जुड़ा हुआ होता है. Various types of occupations are seen in the cities. और कई तरह के occupations हमें शहर में दिखने को मिलते हैं. Many people are dependent on these occupations. और कई लोग इन्हीं occupation पे dependent होते हैं. Some people have shops, while some other people are serving in these shops. कुछ लोगों के पास दुकानें होती है और जिनके पास नहीं होती है वो दुकानों में काम करते हैं. Some people go to office. Some people do business on the road side. और आपने देखा होगा कि पानी पूरी वाला होता है, कोई लारी वाला होता है, लारी गल्ला वाला होता है. जिसके पास खुद की शॉप नहीं होती, पैसा नहीं होते, वो रोड पे अपनी दुकान चलाते हैं, रोड पे बिजनेस करते हैं अपना. जैसे कपड़े वाले बैठते हैं वहाँ पे. तो ये सब सिटी एरिया में बहुत देखने को मिलेगा आपको. लाल दरवाजा जाओ आप तो बहुत सारे लोग बाहर ठेला लगा के बैठे होंगे बेचने के लिए. तो दिस इज सिटी रोड साइड बिजनेस. दिस इज रोड साइड बिजनेस. वाइल सम पीपल वर्क एज हॉकर्स. हॉकर्स मीन्स फेरिया वाला. क्या बोलते हैं जिसे? फेरिया, यानी जो फेरी करता है, सामान चीज़ें बेचता है हमें. जैसे कि हमारे घर पे वो पापड़ बेचने आता है और कई सारी चीज़ें बेचता है. दिस इज हॉकर्स. सम पीपल गो टू द स्कूल और कॉलेज टू टीच. इनमें से कुछ शिक्षित लोग भी होते हैं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल और बिग जॉब्स. और कुछ लोग छोटी बड़ी जॉब में काम करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल टू अर्न लाइवलीहुड. वो लोग अपने स्किल के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं. दैट इज द वन थिंग यू हैव टू मार्क. आई हैव मार्क्ड हियर द स्किल. फॉर अर्निंग इनकम, फॉर अर्निंग प्रेस्टीज, you have to require skill. Without skill you can not earn. If you want to get any kind of employment easily, the basic condition is that you have to be a skillful. If you are not skillful, then you do not get the work. You don't get the work. आपको काम नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा. स्किल कैसी होती है? स्किल क्या है? स्किल यानी कौशल्य, यानी कोई चीज़ आप में करने की कला. अगर आप टीचर बनते हो तो आप अच्छा पढ़ा पाना ये एक स्किल है. अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी में एक तरह की पोजीशन लेना, कमाना, एक अच्छा काम करना, वो स्किल है. यानी किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करना ही एक स्किल कहलाता है. तो आपके पास अर्न करने के लिए, अपना जीवन यापन अच्छी तरह चलाने के लिए एक स्किल बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी होनी चाहिए. सो थिंक एंड से दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर सोशल साइंस नोटबुक. विच ऑक्यूपेशंस आर सीन इन दिस पिक्चर्स? यू हैव टू सीन दिस. विच ऑक्यूपेशन आर सीन इन दिस पिक्चर्स? Which are other occupations are not seen in this picture? On the basis of skill, employment is achieved. You say yes or no. Which occupations would you like to have for an employment? This question is for you. Decide it. What you want to do. Okay. Now I hope you understand. So we will discuss about in part 3 video, next video. Thank you.